اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ضیاء پبلک انگلش میڈیم اسکول کڈلور کا 16واں سالانہ اجلاس. طلباء نے پیش کیے خوبصورت ثقافتی مظاہرے. نوایت محفل کے زیر اہتمام مضمون نویسی مقابلوں کا انعقاد. عنقریب منعقد ہوگا مشاعرہ. منکی میں 2 روزہ ثقافتی پروگرام کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر. دلچسپ پروگرام اور اصلاحی مکالموں کی داد ہر ایک نے دی. ممبئی میں اسکول نے حجاب پہننے پر لگائی پابندی. مسلم خاتون ٹیچر نے دیا استعفا. سلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على. ناظرین اب خبریں تفصیل سے. کنڈلور ضیاء پبلک انگلش میڈیم اسکول کنڈلور کی جانب سے 2 دن قبل رات 8 بجے جامعہ ضیاء العلوم کنڈلور کے احاطے میں خوبصورت طلباء کا پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس میں بچوں نے اپنا دلچسپ ثقافتی پروگرام پیش کیا، جس کو حاضرین نے بہت سراہا. نعت، نظمیں، ترانے، مکالمے، مسنون دعائیں اور دیگر قسم کے دل کو لبھانے والے پروگرام کل 6 زبانوں میں پیش کیے گئے، جس میں عربی، اردو، انگریزی، کنڑا، ملیالم اور نوایتی زبان شامل ہیں. بچوں کے پروگرام پیش کرنے کے انداز سے ان کے پیچھے ان کے اساتذہ کی محنت کا پتہ چلتا ہے. پروگرام کے لیے اپنے طلباء کو تیار کرانے میں اساتذہ نے اپنے دن رات ایک کر دیا اور طلباء کو اسٹیج کے لائق بنایا، جس پر مہمانوں نے ان کو بھی خصوصی مبارکبادی پیش کی. جلسے کے مہمان خصوصی وزیر اغذیہ حکومت کرناٹک جناب UT قادر صاحب نے اس موقع پر تفصیلی خطاب کرتے ہوئے اسکول کے ذمہ دار مولانا عبید اللہ ابوبکر ندوی کو خصوصی مبارکبادی پیش کی اور کہا کہ اتنے چھوٹے سے گاؤں میں اس طرح طلباء کا یہ پروگرام یقیناً یہاں بچوں کے اندر تعلیم کے حصول کے شوق کو واضح کر رہا ہے. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اچھا شہری بننے کے لیے نعرے بازی کرنا اور کسی مذہب کی مخالفت کرتے ہوئے بیان بازی کرنا ضروری نہیں، بلکہ تعلیمی میدان میں ترقی کر کے ملک کو ترقی پر لے جا کر بھی اچھا شہری بن سکتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ سکون حاصل کرنے کے لیے لوگ پریشان ہیں، لیکن انسان کو سکون دنیا سے جانے کے بعد جنت ہی میں مل سکتا ہے. اس لیے اپنی زندگی میں ایسے کام کیے جائیں جو ہمیں جنت تک لے جائیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہمیں کامیابی ملی. انہوں نے زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ طلباء کو زبانوں پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے، جس سے وہ یہاں سے دیگر علاقوں میں جائیں تو ان کے سامنے اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور ان کی زبان سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے خود کی مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں نے شروع میں اردو اور ہندی زبان پر توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے کئی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ نہیں سمجھ سکے. جب کرناٹک سے باہر کہیں جاتے ہیں تو سب سے زیادہ دقت زبان کو لے کر ہوتی ہے. میں ان کی زبان نہیں سمجھ سکتا اور میری زبان نہیں سمجھتا. اس موقع پر یہاں گفتگو کرتے ہوئے جناب عنایت اللہ شاہ بندری نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں کے طلباء بھی تعلیمی میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں. ان طلباء نے بہت بہترین پروگرام پیش کیے. ہمیں اسی طرح تعلیمی میدان میں ترقی کر کے ملک و ملت کا نام روشن کرنا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ حکومتی اسکیمیں اس سلسلے میں بھی اور دیگر کئی شعبوں میں ہمارے لیے موجود ہیں، جس سے استفادہ کرنا چاہیے. ہمارے لوگوں کو اسکیموں کی تفصیلات کی واقفیت نہ رہنے کی وجہ سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ نوجوانوں کی ایک ایسی ٹیم بنائی جائے جو لوگوں کے سامنے حکومت اسکیموں کی تفصیلات سامنے رکھے اور ان کو فائدہ اٹھانے کے مواقع فراہم کرے. اس موقع پر گوپال پجاری رکن اسمبلی بیندور نے بھی مختصر خطاب کیا. ضیاء ایجوکیشنل ٹرسٹ کے بانی و ناظم مولانا عبید اللہ ابوبکر ندوی نے اپنے خطاب میں جہاں طلباء اور سرپرستان کو تعلیم کے روح کے بارے میں جانکاری دی اور کہا کہ طلباء جس انداز میں پروگرام پیش کر رہے ہیں اس سے اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ انگلش میڈیم کے طلباء ہیں یا مدرسے کے، کیونکہ انگریزی ہو، اردو ہو یا عربی، طلباء کے تلفظ اور الفاظ کی ادائیگی پوری طرح کھل کر ہو رہی ہے. انہوں نے اس موقع پر سرپرستان سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تعلیم کے ساتھ ان کی صحت، ان کی صحیح تربیت پر بھی توجہ دیں. ملحوظ ہے کہ اس پروگرام میں اسکول کی 3 استانیوں کو بے اعزاز سے نوازا گیا جو گزشتہ 15 سالوں سے یہاں تجزیزی خدمات انجام دے رہی تھی. ملحوظ ہے کہ اس پروگرام کا آغاز زہید کی تلاوت کلام پاک سے ہوا. فاطمہ نوحہ اور نعت زحا نے پیش کی. رات دیر گئے جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پورا پروگرام فکر و خبر YouTube چینل پر لائیو دکھایا گیا تھا، جس کو چینل پر اپلوڈ کیا جا چکا ہے. بھٹکل
मदारिस और कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा में मज़मून नवीसी का ज़ौक़ पैदा करने और मुस्तक़बिल में एक अच्छे कलमकार बनकर कौम व मिल्लत की खिदमत का अज़्म लेकर नवायत महफिल भटकल के ज़ेर एहतिमाम 8 और 9 दिसंबर 2016 ईस्वी बरोज़ जुमेरात व जुमा बाद नमाज असर नवायत महफिल दफ्तर वाक़ चौक बाज़ार भटकल में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर मज़मून नवीसी का मुकाबला मुनक़िद किया गया, जिसमें मदारिस और कॉलेजों के तलबा ने हिस्सा लिया। फ़िक्र ख़बर के मुताबिक तलबा को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया था। 8 दिसंबर को ग्रुप ए में शरीक 9 तलबा के दरमियान मुकाबला हुआ और ग्रुप बी का मुकाबला 9 दिसंबर बरोज़ जुमा को बाद नमाज असर मुनक़िद किया गया, जिसमें कुल 10 तलबा ने शिरकत की। उसके बाद दोनों ग्रुपों में शरीक तलबा में इम्तियाज़ी नंबरात हासिल करने वाले तलबा को 5 जनवरी 2016 ईस्वी को मुनक़िद होने वाले नवायती गीत मुकाबले के प्रोग्राम में इनामात से नवाजा जाएगा। इसके साथ साथ मज़मून नवीसी मुकाबले के शुरका को भी खुसूसी इनामात से नवाजा जाएगा। इस मौके पर नवायत महफिल के मेम्बरान में कन्वीनर जनाब इकबाल सईदी, जनरल सेक्रेटरी सादिक असरमता, मौलाना अब्दुल अलीम कासमी साहब, जनाब मुहतशम जान अब्दुर्रहमान साहब, जनाब मुस्तफ़ा ताबिश, जनाब समीउल्लाह बरमार, मौलाना जाफ़र फ़कीह भाव नदवी और मौलाना शाहीन कमर साहब वगैरह मौजूद थे। मनकी मदरसा रहमानिया मनकी और अल-मुमिनात पब्लिक स्कूल मनकी का 2 रोज़ा सकाफ़ती प्रोग्राम जुमेरात के रोज़ करीब रात 2:30 बजे पूरी कामयाबी के साथ अपने अख्तिताम को पहुँचा। इस 2 रोज़ा प्रोग्रामों में मदरसा और स्कूल के तलबा ने हम्द नात, इस्लाही तकारीर, माशरे में फैली बुराइयों की इज़ाले की जानिब से आवाम को तवज्जो दिलाने के लिए बेहतरीन मुकालमे और दीगर कई सकाफ़ती प्रोग्राम अरबी, उर्दू, नवायती, कन्नड़ और अंग्रेज़ी ज़बानों में पेश किए, जिसको सामीन में से हर एक ने सराहा। फ़िक्र ख़बर की जानिब से इस 2 रोज़ा प्रोग्राम को बराह रास्त नशर किया गया था, जिसमें खलीज के मुख्तलिफ ममालिक में मुक़ीम अहलियान मनकी ने देखा और इस प्रोग्राम में शरीक तलबा को ढेर सारे इनामात देने का ऐलान किया। प्रोग्राम के दौरान मुहतम मदरसा रहमानिया मनकी व काजी जमातुल मुस्लिमीन मनकी ने वक्तन फ़वक्तन प्रोग्राम के मकासद और उसकी इनेकाद की वजूहात बयान करते हुए कहा कि दरअसल इस तरह प्रोग्राम बच्चों में छुपी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए मुनक़िद किए जाते हैं और तलबा की जुर्रत और बेबाकी के साथ स्टेज की जीनत बनना और मुख्तलिफ नौ प्रोग्रामों को बिला झिझक पेश करना कोई मामूली बात नहीं। माशाअल्लाह तलबा ने बड़े ही अच्छे अंदाज में मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए, उस पर हाज़रीन की जानिब से खूब सराहा और तलबा की हिम्मत अफजाई के लिए इनामात भी तकसीम किए। मौलाना ने मज़ीद कहा कि अल-मुमिनात पब्लिक स्कूल की ज़ेर तामीर इमारत के लिए भी बाज़ अफराद ने खुसूसी अतिया से नवाजे जाने का ऐलान करते हुए एक कमरों की अखराजात भी देने की बात कही, जिस पर उन्होंने इन हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, उनकी कमाई में बरकत के लिए दुआ भी मांगी। मलूज़ रहे कि इस प्रोग्राम में अहलियान मनकी ने ढेर सारे इनामात का ऐलान किया। मजमूई तौर पर कुल 5.5 लाख रुपये से ज़ायद इनामात बच्चों के लिए मौसूल हुए और सिर्फ माज मुजम्मिल कटंगरी और सिमरा अब्दुल हसन कटंगरी जैसी सिबियान के दर्जात में पढ़ने वाले तलबा के लिए करीब 15 से 20 से 25 हज़ार से ज़ायद रकम बतौर इनाम मिली। प्रोग्राम के आखिर तक आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। प्रोग्राम का पूरा लुत्फ़ उठाया गया। फ़िक्र ख़बर की जानिब से तीनों नशिस्तों को लाइव दिखाने जाने पर बैरून हिंद मुक़ीम अहलियान मनकी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बैरून मुक़ीम रहने के बावजूद तीनों नशिस्तों को भरपूर लुत्फ़ लिया। मनकी जमात दमाम के सदर जनाब इश्तियाक अबू हुसैना, जनाब मुहसिन काजी, मौलवी फ़हद नदवी मनकी, मौलवी अब्दुल मतीन बहरैन वगैरह ने फ़ोन से रब्ता करते हुए खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मलूज़ रहे कि 2 रोज़ा इस इजलास की इफ्तिताई नशिस्त में जामिया इस्लामिया जामियाबाद भटकल के मुहतम मौलाना मकबूल कुबट्टी नदवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत फरमा कर माशरे की दुख तिरक पर हाथ रखते हुए कई बेराह रवियों की जानिब तवज्जो मजबूल कराया और मुकम्मल ईमान में दाखिल होकर वक्त गुजारी के लिए मुहैया नई टेक्नोलॉजी से गुरेज करने की अपील की। इसी तरह दूसरी नशिस्त में उस्ताद जामिया इस्लामिया भटकल व काज़ी खलीफा जमातुल मुस्लिमीन मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन नदवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत फरमा कर आवाम से खिताब फरमाया। इस तरह ये 2 रोज़ा जश्न तालीमी पूरी कामयाबी के साथ रात करीब 2:30 बजे तलबा की दुआ या नज़म पर अपने अख्तिताम को पहुँचा। मुंबई में एक स्कूल के ज़रिए एक टीचर को स्कूल के अहाते में बुर्का पहनकर आने से मना किए जाने का वाक़या सामने आया है। इस वाक़े से जहां इलाक़ाई लोगों में शदीद नाराज़गी है, वहीं स्कूल के टीचर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। 25 साला खान शबीना नाज़दीन कुर्ला में वाक़ विवेक इंग्लिश स्कूल में पढ़ाती थी। नाज़दीन के मुताबिक उनके लिए स्कूल में काम करना मुश्किल हो रहा था। ये सब कुछ स्कूल के गलत तस्वुरात के सबब हो रहा है। उन्होंने बताया कि वो गुज़श्ता 2 साल से एक ICT टीचर के तौर पर इसमें स्कूल में पढ़ाया करती थी, लेकिन जब जून में नई स्कूल हेडमास्टर ने ओहदा संभाला है, तब से उनको हिजाब पहनने को लेकर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई हेडमास्टर के आने के बाद मुझसे मुसलसल हिजाब और बुर्का उतारने के लिए कहा गया। siyasathhind.com की खबर के मुताबिक नाज़रीन का कहना है कि जब मैंने कहा कि ये मेरा रिवायती लिबास है और इसे पहनने का मेरा आईनी हक़ है, नाज़रीन ने बताया कि उन्होंने 5 दिसंबर को इस्तीफ़ा दे दिया, जब कौमी तराने से पहले उन्हें अपना बुर्का उतारने के लिए कहा गया। इस दिन मॉर्निंग असम्बली में बारी उनकी थी। नाज़रीन ने कहा कि मुझे मेरा बुर्का हटाने के लिए मजबूर किया गया। जब मैंने ऐसा करने से इनकार किया तो हेडमास्टर ने कहा कि मैं बुर्का पहनकर कौमी तराना नहीं गा सकती।
वहीं स्कूल के प्रिंसिपल विक्रम पिल्लाई ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है और कहा है कि उनके यहाँ इस तरह का कोई इम्तियाजी सलूक इख्तियार नहीं किया जाता। ताहम उन्होंने कहा कि नई हेडमास्टर के आने के बाद कुछ नए कवानीन को नाफिज किया गया है। उन्होंने बताया कि फ़िलहाल नाज़रीन का इस्तीफ़ा इंतज़ामिया के पास भेज दिया गया है। कि स्कूल में मुतादिद मुस्लिम तलबा पढ़ते हैं मगर आज तक किसी को भी हिजाब पहनने से नहीं रोका गया। इधर नाज़रीन ने गैर सरकारी तंजीम जय हो फाउंडेशन के ज़रिए वज़ीर तालीम विनोद तावड़े को ख़त लिखकर राब्ता किया है। जय हो फाउंडेशन के ट्रस्टी आदिल खत्री के मुताबिक आइन के आर्टिकल 25 के तहत एक शख्स के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि माशरे के लिए अच्छा नहीं, हम वज़ीर से इसकी शिकायत करेंगे। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप अपने नए घर के लिए डाइनिंग टेबल खोज रहे हैं? सोफ़ा सेट, टी टेबल, कैबिनेट अलमारियों से अपना नया घर सजाना चाहते हैं तो जल्दी करें। मदीना कॉलोनी में वाक़े अली एजुकेशनल बुक हाउस में आपको रियायती दामों के साथ बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी के सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कैबिनेट अलमारियाँ, टी टेबल और नित नए डिज़ाइन के आपके पसंद के फ़र्नीचर दस्तयाब हैं। जल्दी कीजिए, महदूद स्टॉक है। राबिते के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करें 8150939399।